Fine, let's understand today the debt to equity ratio in detail. Now, the long-term borrowings. Yesterday we know that the debt to equity ratio की formula बहुत ही simple है. It's a debt upon equity. But in here, the debt equals to the long-term borrowings, as I said, and the equity is of the shareholders' funds, basically, right? There are different ways हमने कल देखा था, right, to find debt and to find equity. Now, today let's understand the objective significance and let's start with the sums. Long-term borrowings are shown in the balance sheet under non-current liabilities. Normally, non-current में ही long-term borrowings और long-term provisions दोनों होते हैं, right? And इसमें क्या क्या include होता है? It includes debentures, bonds, loans from banks, finance institutions, etc., etc. या public deposit you ले. और long-term provisions भी आप ले सकते हो, right? These both things are included. So let me underline this: long-term borrowings and long-term provisions, right? And this long-term provisions में क्या include होता है? Provision for gratuity, leave encashment, etc. Debt to equity ratio आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि how much a company is having a debt, that means the external liability vis-a-vis internal liability. तो company एक चीज याद समझ लीजिए. Let me open my whiteboard. Let me explain you a little bit in detail. Yesterday what I was explaining. Okay. वही शीट पे मैं वापस लेके जा रहा हूँ आपको. Now, the liabilities are what? And what the assets are? Try to understand. Assets are something what the firm owns, right? And liabilities are something what the firm owes. And इसको किसी ना किसी को देना है. See, firm in itself doesn't bring anything. It's an artificial person created by law, right? So उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है जो खुद ब्रिंग करेगा. तो वो कहीं ना कहीं ओन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी को ओन कर रहा है. ना वो जो ओन कर रहा है, that is the entire assets of this. ये पूरा asset जो ओन कर रहा है, वो फंड कहाँ से हुआ है? वो फंड सब कुछ फंड हुआ है कहीं ना कहीं लायबिलिटीज में से, राइट? सो द मोर द लायबिलिटीज द मोर द असेट्स, साइमल्टेनियसली दोनों साथ में ही जाता है. उसका मतलब ये होता है कि जितना ओ करेगा वो कहीं ना कहीं ओन करेगा, राइट? कहीं ना कहीं तो उसको लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स ओ कर रहा है, लेट्स से, राइट? और नॉन करंट लायबिलिटी ओन कर रहा है. तो ये दोनों ओ कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ लगाएगा? वो इट विल बी इन समवेयर असेट्स. ना हमको ये जानने की कोशिश कर रही है डेट टू इक्विटी में कि जो असेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है या फिर बिजनेस जो चल रहा है, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, दैट इज डेट कितना है, और इंटरनल लायबिलिटी कितनी, दैट इज इक्विटी कितना है. समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो रहा है? कल तो हमने फॉर्मूलाज देखा, पर आपको आज ये समझना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग. A high debt to equity ratio means that the enterprise is depending more on borrowings. ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होने का मतलब होता है कि एंटरप्राइज बोरो ज़्यादा कर रहा है, बाहर का पैसा ज़्यादा यूज कर रहा है बिजनेस में, और एक्सटर्नल डेट्स एज कंपेयर टू द शेयरहोल्डर्स फंड्स. इन इफेक्ट, lenders are at a higher risk and have a lower safety. उसका मतलब ये भी हो जाता है कि lenders का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, राइट? और उसकी सेफ्टी कम हो जाएगी. नाउ सेफ्टी कम होने का मतलब ये भी होता है कि the lenders are not going to get the payment in time, right? So definitely अगर higher risk के ब्याज ज़्यादा है तो definitely payment time to time आना बहुत difficult है. On the other hand, low debt to equity ratio, अगर debt to equity ratio low है, means the enterprise is depending more on shareholders funds. उसका मतलब होता है कि वो ज़्यादातर shareholders funds पे depend कर रहे हैं, right, than external equities. In effect, the lenders are at a lower risk and a higher safety. उसका मतलब ये भी होता है कि lenders के पास रिस्क कम है और सेफ्टी ज़्यादा है. उसका मतलब ये होता है कि ओनर्स खुद का ही पैसा ज़्यादा लगा रहा है as compared to the outsiders. Are you getting this? Yes, Yes sir. or no? Fine. Just a minute.
लेट्स मूव अहेड. आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए डेट टू इक्विटी का? सो डेट टू इक्विटी का आइडियल रेशियो होता है 2:1. वाई 2:1? इट मीन्स कि आप अगर 1 रुपया बिजनेस का अपना लगाओगे तो उसके सामने आप 2 रुपया बाहर का लगाओगे, राइट? यानी 1 रुपया आपको लगाना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, अगर टोटल 3 रुपये लगा रहे हो, कहने का मतलब ये होता है, तो उसमें 1/3 आपका खुद का होना चाहिए और 2/3 बाहर का होना चाहिए. अभी ये क्यों ऐसा, राइट? आइडिया क्यों ऐसा बोला गया? अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, पर ऐसा बोला क्यों गया? द रीजन ये है कि ओनर्स अपना पैसा लगाएगा, उसका मतलब ये है कि ओनर का कंट्रोल है बिजनेस पे और वो किसी को दे नहीं देने वाला है, बिजनेस बेच नहीं देने वाला है, नंबर 1. और पैसा ज्यादा बाहर का क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रेडिंग ऑन ओनर्स इक्विटी. दूसरों के पैसे से धंधा करना. आप बीएसटी में पढ़ चुके होंगे ये टर्म, राइट? ट्रेडिंग ऑन ओनर्स इक्विटी. इट मीन्स कि अगर आपके बिजनेस में लेट्स से 15 या 17 या 20 तक का रिटर्न्स आप छोड़ रहे हो और मार्केट में ब्याज चल रहा है लेट्स से 10%, तो डेफिनेटली 10% पे आप पैसा उठाओ, 10% दे दो और 15% आप कमाओ बिजनेस में. दैट इज 5%. द नेक्स्ट 5% इज द प्रॉफिट. और इसीलिए वो बोला जाता है कि ज्यादातर पैसा आप बाहर लो, तो पूरा का पूरा पैसा बाहर का मत लेना चाहिए. ये भी गलत है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कंपनी रिस्क में आ जाएगी. इसीलिए कुछ पैसा बाहर का और कुछ पैसा अंदर से इक्विटी का लेना जरूरी है. या आप बीएससी में पढ़े हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आया था कि नहीं आपको ये साल? यस और नो? डेट टू इक्विटी आई थिंक वहां पे भी है आपको बिजनेस स्टडीज में. याद है किसी को? यस सर. आपका बीएससी का टॉपिक हो गया, चैप्टर सब खत्म हो गए? यस सर. ओके, लेट्स मूव अहेड. A high debt to equity ratio means the enterprise is depending more on borrowings. और कम होता है उसका मतलब ये होता है कि एंटरप्राइज अपने हिसाब से चल रहा है. The objective of debt to equity is to measure the proportion of external funds and the shareholders funds invest in the company. कितना बाहर का पैसा और कितना अंदर का पैसा लगाया गया है, राइट, बिजनेस को चलाने के लिए. This ratio assesses a long term financial position, very very important. इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं, राइट? And soundness of the long-term financial policies of the enterprises, right? It also indicates the extent to which the enterprise depends on borrowed funds for its business. कैसे वो borrowed funds पे काम कर रहा है business में. So the following information calculate debt to equity ratio, right? आपको debt to equity ratio निकालना है information से. तो आपको debt दिया गया है, long term जो भी चीज़ दी गई है वो debt है, जैसे कि debentures है, long term provisions है, वो सब बाहर का है, right? This is current, this is non, ये सब non current है, this is current, right? Now when I talk about the debt, right, I always talk about the long term debt, right? और इक्विटी में शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व्स और सरप्लस दोनों आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट मेंशन है कि 1,75,000, that is this and this are equity, and 1 lakh, that this is and this are debt. समझ में आ रहा है? See, नॉन करंट लायबिलिटी ही, याद रखिए वापस, नॉन करंट लायबिलिटी ही डेट बोली जाएगी. ये क्लियर है सबको? यस सर. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग. अभी लेसन 40, राइट? अभी हर एक सम हम ट्राई करते हैं बोर्ड पे करने को, राइट? सो यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. Let me copy the sum over here. There are total assets, there are total debts, that is external debts, total debts बोला है, see, and then current liabilities बोला है. तो हमको पता है
कि अगर मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं, राइट, असेट्स और लायबिलिटीज का, तो टोटल असेट्स यानी वो यहाँ पे आता है असेट्स, असेट्स का जो टोटल होगा दैट इज विल बी टोटल असेट्स, राइट। वो कितना है, ऐसा समझ लो बोला 25,000 है, बराबर है। इसमें क्या हो रहा है, टोटल डेट्स हमको पता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट्स द लायबिलिटी पार्ट, ये लायबिलिटी का पार्ट है, मैं रफ लिख रहा हूँ ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड क्या होता है, करंट लायबिलिटी, राइट। ये दोनों मिला के क्या बनता है, टोटल डेट बनता है। क्या बनता है, टोटल डेट। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है टोटल डेट दिया गया है, और वो कितना है, 1 लाख है, दोनों मिला के 1 लाख है। और उसमें से ये बोला भी है यहाँ पे कि करंट लायबिलिटी कितना है, 50,000। अगर उसमें से 50,000 करंट लायबिलिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी, यस 50,000. राइट, दोनों मिला के 1 लाख है, तो ये 50,000 होगा, राइट, टोटल डेट, और तो ये भी 50,000 होगा। अगर ये पूरा 1 लाख हो गया और टोटल हमारा ट्रांजेक्शन का टोटल कितना है, 1,25,000, उसमें से 1 लाख निकाल दो तो शेयर होल्डर फंड कितना बचेगा, 25,000 बैठेगा कि नहीं, तभी तो ये मिला के 1,25,000 आएगा, यस। अगर आपको ये दिमाग में ब्लूप्रिंट मुंह पे है ना, तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये ब्लूप्रिंट को देख के ही आप फॉर्मूला बना सकते हो। अगर कोई मुझे पूछे कि हाउ टू फाइंड द डेट्स, तो मैं तो सीधा बोलूंगा टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो आपको मिलेगा डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। और कोई मुझे पूछेगा शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे फाइंड करूं, तो मैंने बोलूंगा टोटल असेट्स दिए गए हैं, टोटल असेट्स में से आप क्या करो, टोटल डेट्स को माइनस कर दो, तो 25,000 मिल जाएगा ना। Are you getting the logic? Yes, Yes. sir. Now see, every time हर एक सब अपने आप में डिफरेंट है, तो हर एक टाइम आपको फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लगानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, से दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। जैसे मैंने बोला टोटल डेट किसको बोलते हैं, डेट किसको बोलते हैं, ये डेट है, ये इक्विटी किसको बोलते हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। सो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस यू गेट टू नो। ना अगर मुझे कोई पूछे डेट टू इक्विटी क्या है, तो सिंपल भाषा में बोलूंगा, मुझे डेट मिल गया है, कितना है, 50,000, और इक्विटी मिल गया है, कितना है, 25,000। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला डेट टू इक्विटी 50,000/50, यस और नो। सो that is how much, 2:1, क्लियर है ये। Yes, sir. Okay, now one more sum I am going to give you, but now you have to do, I'll give you 3 minutes to complete that sum, right? So I'm giving you on board, have a pen and paper and try to solve by yourself, right? आप अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें, कितना आता समझ में आ जाएगा आपको। Sir, the ratio will be 1:1. 1:1, very good, everyone got that answer?
Yes, sir. Sir, it's only 1:1:1.5. कैसे? What your debt comes to? Debt में क्या क्या आया? एक ही चीज है debt में तो 3,50,000. Yes, no? और इक्विटी क्या है? इक्विटी में दो चीज है. सिंपल तो है ये. Yes, sir, yes. रिजर्व्स देखो, रिजर्व्स प्रॉफिट वो सब ओनर्स का होता है, यानी वो शेयर होल्डर्स पे ही आएगा वो सब कुछ, राइट? एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओनर्स ओनली, राइट? फाइन. द नेक्स्ट सम आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. और इसमें अगर मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर लॉस होता है तो माइनस भी होता है, तो नेक्स्ट सम उसी पे ऊपर है. ओनर्स की इक्विटी में से माइनस हो जाएगा अगर लॉस आएगा तो नेक्स्ट सम लेट मी शो यू. ये बहुत इजी है, सिर्फ इसमें सिर्फ लॉस है. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है. चलो फटाफट निकाल के मुझे बोलो. Sir, 2:1. Just a minute. Yes, 2:1 is the answer. Just hold on for a while. Okay, we'll move on now. Everyone got the answer? 2:1. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now debt to equity में भी इंक्रीज डिक्रीज समझते हैं, जैसे हमने समझा था, राइट? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो रेशियो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, राइट? उसको अच्छे से समझते हैं. तो यहाँ पे इलेक्शन 44 दिया गया आपको. अज्यूमिंग बोल रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो को 2:1 मान लो, राइट? जैसे समझ लो, मैं यहाँ से बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ. यहाँ पे अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो ऐसे बड़े अक्षर में लिख दो तो आपको समझ में आ जाएगा. इज इक्वल टू 2:1 है, बराबर है. नाउ दिस इज द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन. तो एंट्री क्या आती है? लोन लेने के बाद हमने परचेज ऑफ फिक्स असेट को परचेज किया. सो व्हाट इज गोइंग टू गेट एंट्री? क्या बढ़ेगा और क्या कम होगा? तो सिंपल से बात है, असेट टू लोन आएगा, राइट? यस और नो? फर्स्ट का Yes, sir. राइट. तो असेट बढ़ेगा और लोन बढ़ेगा. तो इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या फर्क आएगा, मुझे ये बताओ. रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? तो मैं बोला यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा, लोन बढ़ेगा यानी लोन फर्क आएगा, डेट बढ़ जाएगा. तो अभी मुझे बताओ रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? यस. Increase होगा. डिनोमिनेटर क्या होगा? Increase. ओके. तो डिनोमिनेटर कभी बटा डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको न्यूमरेटर बोलते हैं. अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑलवेज डिक्रीज होगा, राइट? ये आपको याद रखना है. तो डेफिनेटली यहाँ पे रेशियो क्या होगा? इंक्रीज. नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स. सॉरी, यहाँ पे नहीं, ऊपर, माय मिस्टेक. नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स असेट्स. बुक वैल्यू 40,000 की थी एट अ लॉस ऑफ 5,000.
40,000 की चीज हमने 35,000 में बेची, यानी लॉस किया हमने, राइट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज द एंट्री? पहले जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करो. व्हाट विल जर्नल एंट्री इन हियर? सेल किया है हमने तो टू असेट्स होगा, लॉस हुआ तो लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन सेल करके, राइट? और पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट आएगा, और तो क्या आएगा? बराबर है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 35,000, 5,000 और 40,000, ऐसी एंट्री आएगी. यस. अभी इसमें से हमको क्या लेना देना है? हमको लेना देना क्या है इसमें से? हमको बैंक को लेना देना नहीं है. डेट टू इक्विटी में कुछ नहीं आता है और असेट का नहीं आता है. हमको सिर्फ लॉस ऑन सेल्स का लेना देना है. तो लॉस ऑन सेल हुआ तो क्या हो जाएगा? इक्विटी में से माइनस हो जाएगा ये. यस और नो? यस, -5,000 होगा. Yes, sir. तो बोलो रेशियो बढ़ेगा कि कम होगा? यस. डिनोमिनेटर कम हो जाएगा. देखो याद रखो एक बात, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, इफ डिनोमिनेटर विल इंक्रीज द रेशियो विल गो डाउन. ये ऊपर आने से, इसका डिनोमिनेटर को ऊपर आने से एक चीज याद रखो, राइट? तो रेशियो, द एंटायर रेशियो विल गो डाउन. पूरा रेशियो नीचे चला जाएगा. वैसे ही न्यूमरेटर के डाउन जाने से भी रेशियो डाउन जाएगा. यानी न्यूमरेटर डाउन जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर आता है, तो रेशियो डाउन, राइट? इसका विपरीत अगर हम देखें, अगर डिनोमिनेटर ऊपर जाता है और न्यूमरेटर डाउन जाता है, सॉरी, सो माय मिस्टेक, डिनोमिनेटर नीचे जाता है, माय मिस्टेक, उल्टा बोल रहा हूँ. डिनोमिनेटर नीचे जाता है और न्यूमरेटर ऊपर जाता है, तो एंटायर रेशियो विल गो अप. समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है? लॉस हुआ एंटायर, हमको अगर लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल हुआ, तो लॉस कहाँ लिखते हैं हम? इक्विटी में लिखते हैं कि नहीं लिखते? रिजर्व, सरप्लस, Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो इक्विटी में माइनस करेंगे हम इसको, इक्विटी में से. और इक्विटी में से माइनस करेंगे तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? Increase होगा. इंक्रीज होगा. समझ में आ रहा है ये सबको? यस हर्षल, इसमें डाउट आ रहा है आपको तो पूछिए. किसको डाउट आ रहा है इसमें? No, sir. ओके, मूव ऑन. नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स. बुक वैल्यू है 40,000 और हमने बेचा 50,000 में, तो होगा क्या? प्रॉफिट, मुनाफा हो गया या नुकसान होगा? यानी असेट गया 40,000 का, राइट? पैसे कितने आए? हमने कितने में बेचा? 50,000 में बेचा ना, तो पैसे कितने आए होंगे? 50,000 आए होंगे. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे, टू प्रॉफिट ऑन सेल होगा? और प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी में क्या होगा? ये ऐड होगा ना. Add होगा. तो रेशियो क्या जाएगा? देखो डिनोमिनेटर ऐड हुआ है, तो रेशियो क्या जाएगा? Decrease होगा. डिक्रीज होगा. क्लियर है? फाइन. नेक्स्ट, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश. नया शेयर इशू किया
कैश के सामने एंट्री क्या आनी चाहिए? चलिए अभी आप एंट्री पहले बताइए हर्षल। जर्नल एंट्री बोलिए, जर्नल एंट्री से ही सब कुछ होता है यहाँ पे। हम शेयर इशू करने की एंट्री क्या पास करते हैं कैश के सामने अगर क्या तो? हर्षल सर कैश टू डिबेंचर। कैश टू डिबेंचर, डिबेंचर कहाँ से आ रहा है? शेयर से है ना? हेलो क्या है, डिबेंचर से या कैश है? डिबेंचर या शेयर से? यस हर्षल बेटा। सर कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन हियर यू। यस सर। द एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी कैश टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर नहीं है बेटा, शेयर्स है, शेयर्स। मैं बोल रहा हूँ शेयर्स है, Sorry. देखो। यस सर। What will be the entry? What will be the entry? It will be cash to equity share capital. यस सर। तो क्या होगा अगर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, राइट? तो इक्विटी में प्लस होगा तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? यस डाउन जाएगा, रिड्यूस होगा। यस। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है? याद रखिए बोनस शेयर जब इशू होता है, राइट, तो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये इसकी टेक्निकल बात नहीं पता इसलिए आप बोल नहीं सकते, पर अगर मैं बताता हूँ कि अगर ये शेयर होल्डर्स फंड्स है यहाँ पे, राइट, और लेट्स से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेट्स से इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोज लो 10 लाख, राइट। आपके पास रिजर्व्स पड़ा है कुछ, समझ लो 5 लाख। तो कंपनी क्या करती है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को अगर शेयर कैपिटल ज्यादा देना हो, लेट्स से 10 लाख शेयर होल्डर्स को, उनको 2 लाख और शेयर्स दे देने हो मुफ्त में, तो वो क्या करती है पता है? रिजर्व्स में से पैसा निकाल के वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दान करती है। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। उसको क्या बोलते हैं? बोनस। अल्टीमेटली आप यही चीज को रिवाइज फॉर्म में देखोगे, राइट, नेक्स्ट ईयर बोनस शेयर इशू करने के बाद, तो इसकी एंट्री कुछ इस हिसाब से आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट ईयर में देखने जाओगे तो कुछ इस हिसाब से आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा पता है? ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये 12 लाख हो जाएगा। और रिजर्व कितना हो जाएगा? 2 लाख से कम हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो, अल्टीमेटली अब ये 15 लाख है और ये 15 लाख है, दोनों इक्वली रहेंगे। तो डेफिनेटली बोनस शेयर इशू करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगा पर आपका रिजर्व्स कम हो जाएगा उतने अमाउंट से। अल्टीमेटली दैट इज नो चेंज। ये समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। तो उसकी एक्चुअली एंट्री कैसे आती है पता है? जर्नल एंट्री अगर आप मुझे पूछो तो मैं ऐसे बोलूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे आती है उसकी एक्चुअली एंट्री। यानी जितने अमाउंट से रिजर्व सरप्लस को डेबिट किया गया है, यानी कम किया गया है, उतनी अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल को भी बढ़ाया गया, राइट। तो बोनस शेयर्स होने से याद रखिए
कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 6 करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर को रिडीम करोगे तो व्हाट विल बी योर एंट्री? Redemption of debentures. Yes. गारंटी क्या होगी? पैसे वापस कर रहे हो डिबेंचर के। Debenture account debit to bank account. Yes, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड। ट्राई करो आस्था, आयुषी, आप भी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर यहाँ पे हमको बैंक अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिबेंचर के बैलेंस कैसे होते हैं? नॉर्मली क्रेडिट होते हैं शेयर कैपिटल की तरह। यानी वो डेबिट होने का मतलब क्या होता है? डिबेंचर कम हो रहा है। डिबेंचर कम होने का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे भी कम हो रहा है माइनस में। यस और नो? यस। Yes, sir. So what is going to happen? कैसे डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे ना? यहाँ पे रिडम्पशन का तरीका बताया नहीं गया है, राइट? पर यहाँ पे ऐसा बोला गया है सिर्फ रिडीम किया गया है। अगर रिडीम किया गया है फॉर कैश तो मेरे हिसाब से ये एंटायर रेशियो डिक्रीज होना चाहिए। आपके सॉल्यूशन में नो चेंज लिखा गया है, क्योंकि नो चेंज का मतलब क्यों लिखा गया है? क्योंकि डिबेंचर रिडीम होता है उससे पहले कुछ रिजर्व बनाया जाता है, राइट? और रिजर्व में से रिडीम होता है। उनका कहना ये है डिबेंचर का रिडम्पशन रिजर्व होता है और वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। पर मेरे हिसाब से इससे पूरा रेशियो कम होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा, ये मैं पूछ के बताता हूँ आपको। नॉर्मली ये रेशियो कम होना चाहिए इससे, मेरा कहना ये है। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे। फाइन, नेक्स्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, ये तो बहुत इजी है। डिबेंचर को डेबिट किया जाएगा और इक्विटी शेयर को क्रेडिट किया जाएगा कन्वर्ट करने के टाइम पे। तो इक्विटी को क्रेडिट किया जाएगा, उसका मतलब क्या है? इक्विटी बढ़ेगा, यानी इक्विटी प्लस में आएगा, डिबेंचर नेगेटिव में जाएगा। एंड डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों ही चीज क्या बता रही है? डिनोमिनेटर का बढ़ना, डिनोमिनेटर का बढ़ना और न्यूमरेटर का कम होना, दोनों ही चीज क्या बता रही है? Ratio is decreasing. Yes, the ratio is decreasing. The entire ratio is going to decrease on anyhow. The last part, फाइनल डिविडेंड का डिक्लेयर करना, राइट? डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड से क्या होगा? सी यहाँ पे एक्चुअली नो एंट्री आनी चाहिए कुछ क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं, पेड और फाइनल डिविडेंड आना चाहिए। डिक्लेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल में, रियल लाइफ में। पेड और फाइनल डिविडेंड से फर्क पड़ता है, क्योंकि पेमेंट कहाँ से किया जाता है? उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस से किया जाता है। सो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड तो खाली डिक्लेरेशन है ना, वो तो सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में बोला गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? और अगर पेड और फाइनल डिविडेंड होगा तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर पेड करोगे आप फाइनल डिविडेंड को तो एंट्री क्या आएगी? अब यू आर गोइंग टू पे द डिविडेंड। पहले तो ये भी जरूरी इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा जो निकलता है डिविडेंड का वो रिजर्व्स में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? रिजर्व्स में से। सो यहाँ पे रिजर्व्स राइट टू कैश आता है नॉर्मली, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैश। तो उस टाइम पे कैश का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर रिजर्व एंड सरप्लस से क्या होगा? रिजर्व सरप्लस डेबिट हो रहा है, उससे अच्छा क्या होगा? इक्विटी कम होगा। इक्विटी कम होने का मतलब क्या होता है? द एंटायर रेशियो विल इंक्रीज। Increase. समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर कम हो रहा है। यहाँ पे डिक्लेरेशन वर्ड नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, पेमेंट आना चाहिए।
फाइन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश मैं आपको देख के बताता हूँ, कंफ्यूजन है उसमें मुझे थोड़ा। इलस्ट्रेशन 45-46 राइट, 2 इलस्ट्रेशन आपको घर पे करने हैं और उसके भी सम्स में दे दूं, कर पाओगे आप? या Yes, नहीं sir. करना है? आप बताओ मुझे। डेट टू इक्विटी रेशियो के कितने सम्स है आपको? 46 तक है। ओके, 11 सम है। बोलो कल करना है परसों करना है? परसों तक रखूं? नहीं परसों भी नहीं, नरसों परसों तक का तो होमवर्क दिया है ना मैंने आपको। Yes, sir. फाइन, आप ये खत्म करो, चलो ठीक है, मैं सोमवार को दूंगा, ये छोड़ो अभी। राइट, डेट टू इक्विटी। फाइन, एनी डाउट्स इन हियर? आप इतना खत्म करो जितना है उतना। एनी डाउट्स इन हियर? No, sir. Fine, so we'll meet on Monday again, right? Fine, beta? Yes, sir. Okay, you want to ask anything? The syllabus will be coming in the next No, week. sir. Okay, fine, beta. Goodbye.